Hello guys, welcome back to YouTube channel DU Scholars, where we are studying the Unit 4 of Business Analytics. Unit 3 was completed in the last video, where I discussed that one of the topics of Unit 4 is also covered under the heading of Unit 3. So today we'll be continuing with the Unit 4, actual Unit 4, in which we'll be covering the second data structure type, that is matrices. And first of all, if you haven't subscribed to the channel yet, you do subscribe, because in these 15 or 20 days I'll be posting maximum videos, and your business analytics syllabus will be over. Only a few topics is left of art, and a few around 4 to 5 topics is left from Excel, and then your you know uh, business analytics will be over. Then I might start with some other subject. If you want, then comment down below. And also to mention that some people were asking कि theory paper कैसे होगा, कितने marks का होगा, and all that. वो सब queries का answer I have shared guidelines with you, or university guidelines with you, on the Telegram channel. Do join the Telegram channel for the practice questions, for all the types of updates and notes. That also the PDF that I am using is posted on that, so you can have the access to that if you are joining the Telegram group, right? So let's start with today's video, where we'll be discussing about matrices. So matrices, as you all know, that we have already studied in mathematics, that it is array form of structure of arranging data. For example, if we say 2 by 3 का matrix, so this means that 2 rows हैं उसमें and 3 columns है, right? Vectors we have already done, जिसका I told you that vectors is a combination of few elements, whereas matrix is array form in which we arrange the data, right? So matrix का syntax we know it is matrix with starting bracket, and you can write here, see the commands that we need to follow. So सबसे पहले we have data we have to make data. For example, if we are making a sequence or characters, something like that, ताकि वो मैट्रिक्स में कर उस किस डेटा को मैट्रिक्स में करना चाहते हो, दैट मीन्स दैट डेटा वो हम पहले बनाएंगे मैट्रिक्स फंक्शन लगाने से. मैं अभी सिर्फ आपको मैट्रिक्स फंक्शन सिंटेक्स का मतलब समझा रही हूँ. एन रो मीन्स आपको रोज कितनी रखनी है. फॉर एग्जाम्पल आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ 2 by 3 का मैट्रिक्स, तो उसमें 2 रोज थी, तो यहाँ पे यू विल राइट एन रो इज इक्वल टू 2 एंड एन कॉलम इज इक्वल टू 3. ठीक है. एंड बाय रो इफ़ यू कीप इट फॉल्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, देन जो बाय डिफ़ॉल्ट आर आपका बाय कॉलम डेटा अरेंज करेगा. अगर यू डू बाय रो इज इक्वल टू ट्रू, देन वो रो वाइज डेटा अरेंज करेगा. ठीक है. dim names is not relevant to you, so you can completely skip that. Now we'll start with data. पहले डेटा बनाएंगे, then we'll apply the matrix function, right? So we'll first of all make a sequence named as keep it matrix only, where we'll keep keep it data so that we can have access to that. और keep it matrix यार, उसमें मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगी. matrix will follow a sequence 1 to 10, where n row will be 5 and n column will be 2. ठीक है. एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉलम वाइज ही रखेंगे, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर. यू कैन राइट हेयर इन कंसोल सी दैट मैट्रिक्स हैव बीन फॉर्म्ड. ऑल्सो अगर आपने यहाँ पर डेटा खुद लिखना है वो भी लिख सकते हो. डेटा पहले डेटा स्ट्रक्चर बना के फिर मैट्रिक्स लगाना, वैसे भी कर सकते हो. दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ठीक है. तो या तो आप ऐसे लिख दो मैट्रिक्स का फंक्शन, या आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स 1 to 10 कॉमा 5 कॉमा 2. आप एन रो इज इक्वल टू एन कॉलम इज इक्वल टू नहीं भी लिखोगे, वो तब भी उठा लेगा. जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर, सेम एंट्रीज आएंगी आपके पास. ठीक है.
अब ये तो आ गया हमारा कॉलम वाइज. लेट्स डू रो वाइज. रो वाइज कैसे करेंगे? मैट्रिक्स 1 to 10 5 2 just press true and control enter. अब यू कैन सी दैट उसने रो वाइज कर दिया है डेटा 1 2 3 4 5 6 7. रो इज हॉरिजॉन्टल, कॉलम इज वर्टिकल, राइट? यू आई थिंक आई होप यू नो दिस कि कैसे एन रो मैं कैसे बोल रही हूँ कॉलम वाइज एंड रो वाइज, है ना? कॉलम वाइज मीन्स नीचे ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 और रो वाइज मतलब ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दैट. सॉरी, आई एम हैविंग अ थ्रोट प्रॉब्लम. I'm really sorry. Next we'll be doing combination का topic, how to combine the matrix. ठीक है? ये मैट्रिक्स का सिंपल सिंटेक्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये ऐसे आएगा. अब हम करेंगे कंबाइन, ठीक है? तो एक हम मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं x. विल रीयूज द मैट्रिक्स फंक्शन 1 to 10 5, 2. विल कीप इट कॉलम वाइज ओनली. x मैट्रिक्स बन चुकी है. विल मेक y मैट्रिक्स 11 to 20 5 rows 2 columns. Control enter. Now you can print x and y. You can see कॉलम वाइज उसने अरेंज करके आपको दे दिया, ठीक है? सो कंबाइन कैसे करना है? एक्स एंड वाई को अगर हमने कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ बनाएंगे न्यू मैट्रिक्स जिसको हम फंक्शन यूज़ करेंगे सी बाइंड. मतलब कॉलम वाइज मैट्रिक्स को बाइंड करो, कंबाइन करो. किन किन को? एक्स और वाई को. प्रेस कंट्रोल एंटर. यू कैन सी यहाँ पर बन चुकी है जेड. अब इसको आप प्रिंट कर लो ताकि आपको कंसोल में रिजल्ट दिख जाए. यहाँ पर आप देख सकते हो 1 to 20 कॉलम वाइज अरेंज होकर हमारे पास आ चुका है. सो दिस इज कॉलम वाइज. अगर हमने करना रो वाइज अरेंज तो हम रो वाइज कैसे करेंगे? जेड को ही कर लेते हैं या यू को कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए. आर बाइंड मीन्स रो की तरह बाइंड करना. किसको करना? एक्स एंड वाई को करना. प्रेस कंट्रोल एंटर एंड जस्ट प्रिंट द यू. यू कैन सी नीचे तक ऐसे आ चुका है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है? यहाँ पे हो गया हमारा ये कॉम्बिनेशन का पार्ट खत्म. उसके बाद हम करेंगे रिमूविंग रोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूविंग रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? तो रिमूव कैसे करना है? फॉर एग्जांपल हम z का ही ले लेते हैं. z में से हमें 7th रो डिलीट करनी है. कैसे करेंगे? z को मॉडिफाई करेंगे z और हमें 7th रो डिलीट करनी है तो हम पहले पोजीशन डिफाइन कर देंगे. डिलीट करनी है तो वील यूज -7 कॉमा ब्रैकेट क्लोज. कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आगे जौन सा नंबर लिखते हैं वो रो को डिफाइन करता है और जो सेकंड होता है वो कॉलम को डिफाइन करता है. तो हमने क्योंकि 7th रो डिलीट करनी है तो हमने -7 लिख दिया. अगर हम एडिशन कर रहे होते तो प्लस करके कर देते. और अगर हमने कॉलम डिलीट करना होता तो कॉमा डाल के पीछे विल राइट की कौन सा करना. फॉर एग्जांपल 7th कॉलम करना है तो कॉमा -7 ऐसे आएगा, ठीक है? मैं वो भी आपको बता देती हूँ. आपको पहले 7th रो डिलीट का बता देती हूँ. ये हो गया. नाउ प्रिंट जेड. तो यू कैन सी 7th रो जो पहले जेड में 5 रोज थी. सॉरी 5, व्हाट आई एम डूइंग, सो सॉरी. यू से करते हैं बिकॉज 7th रो उसमें है ही नहीं है. यू को you can use this -7 and control enter. now print u. वो वहाँ पर किस लिए नहीं क्योंकि उसमें थी ही 5 रो. अब इसमें है 10 एंड इधर आप देख सकते हो 9 रह चुकी हैं. उसने 7th डिलीट कर दिया. 12 वाली जो है वो डिलीट हो चुकी है. 12 और 17 वाली रो डिलीट हो चुकी है, ठीक है? I'm so sorry with my throat. नाउ टॉकिंग अबाउट डिलीटिंग द कॉलम्स वाला. तो डिलीट कैसे करेंगे? यू से ही डिलीट कर देते क्योंकि हमारा ये मैट्रिक्स सही तरह बन रखा है. फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लेते हैं. यू
मॉडिफाई करो, कॉमा -1, प्रेस कंट्रोल एंटर, प्रिंट यू। नाउ यू कैन सी हमारे पास ये ही सिर्फ रह चुकी है और हमारी फर्स्ट कॉलम डिलीट हो चुका है सारा। ठीक है, उसके बाद इफ़ हमने एक डिलीट ना करके एक से ज़्यादा डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें 2 रोज़ डिलीट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं। न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं, ऊपर आएगा, सॉरी, xmat के नेम से बना लेते हैं न्यू मैट्रिक्स, वेयर विल हैव मैट्रिक्स का फॉर्मूला 1 to 10, 5,2 और इस बार हम इसको ट्रू रखेंगे। कंट्रोल एंटर, प्रिंट xmat, यू कैन सी द मैट्रिक्स। नाउ डिलीटिंग में क्या करेंगे? xmat में करेंगे चेंज, डिफाइन पोजीशन एंड विल यूज कंकैटिनेट फंक्शन, क्योंकि हमें इकट्ठा दिखाना है उसे डिलीशन वाला पोर्शन। ठीक है, -2, -3 मीन्स सेकेंड एंड थर्ड रो डिलीट हो जाएगी, एंड पुट अ कॉमा, और कॉलम्स हमने सेम रखने तो इसलिए कॉमा के बाद कुछ नहीं डालेंगे। प्रेस कंट्रोल एंटर, व्हाट हैपेंड, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ऑपरेटर आना ही नहीं है, हमने पोजीशन दी है, ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद विल डिलीटिंग सिंगल कॉलम तो आपको समझ आ गया ना, यहाँ पे जैसे हमने किया था सेम वैसे ही होगा। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स जिस पर विल सी कॉलम और रोज दोनों कैसे डिलीट करनी है। तो थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें हम दोनों चीज़ें डिलीशन का कॉन्सेप्ट देख सकें। वाई मैट करके विल मेक अ न्यू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का फंक्शन 1 to 64, keep it 8 by 8 matrix, control enter, print ymat, control enter, here is your biggest matrix. Now we have to delete second and third row, sixth and seventh column. तो इसमें कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ymat को पोजीशन देंगे और कंकैटिनेट करेंगे हमारी सबसे पहली रो को, -2 और थर्ड रो को, फिर से कंकैटिनेट लगाएंगे फॉर कॉलम, 6th and 7th column, delete, close the bracket, press control enter. Now you'll see that second and third row and 6th and 7th column is deleted right from here. ठीक है, now talking about the next concept, that is arithmetic operations on matrices. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमने क्या करना है? एडिशन, डिलीशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन तक ही करेंगे, डिविजन इज़ नॉट देयर। तो एडिशन, पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन में भी 2 पार्ट हैं। व्हेन वी हैव टू ऐड यू नो अ कांस्टेंट नंबर टू कांस्टेंट नंबर और बाय वन मैट्रिक्स प्लस द अदर मैट्रिक्स। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमारी एक्स और वाई मैट कौन सी, एक्स और वाई मैट्रिक्स कौन सी बनी हुई, ये बनी हुई है। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स ठीक है, इसी में एडिशन कर लेते हैं पहले। तो न्यू नेम से हम बना लेंगे एक मैट्रिक्स वेयर विल डू एडिशन x प्लस वाई, कंट्रोल एंटर, प्रिंट न्यू, कंट्रोल एंटर। यू कैन सी सब कुछ ऐड होकर आपके पास आ चुका है। सेम होगा सब्ट्रैक्शन के साथ। सब्ट्रैक्शन के लिए विल क्रिएट मैट्रिक्स कॉल्ड सब। नाउ विल डू x minus y and print sub. You can see everywhere it is -10। क्यों? क्योंकि हमने छोटे से बड़े में से डिलीट कर दिया। तो विल डू सब y minus x ताकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए, एंड यू कैन सी हमारा पॉजिटिव नंबर आ चुका है। मल्टीप्लिकेशन में 2 चीज़ें होती हैं,
स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना और मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा आराम से समझेंगे एंड बी पेशेंट वाइल स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का, बिकॉज ये आ भी सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका बेसिक वो भी आ रहा है जो 11th-12th मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यू हैव स्टडी द रूल्स, राइट। तो पहले स्केलर नंबर वाला देख लेते हैं ताकि हमें फिर आगे वाला मैं बताती हूँ कैसे होगा मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स वाला। सबसे पहले स्केलर नंबर वाला लेट मी शो यू। सबसे पहले x को जो हमने हमारा मैट्रिक्स चल रहा है उसको विल से कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई इट विथ 3 एंड विल प्रेस प्रिंट x। देख सकते हो 1 2 3 वाला मैट्रिक्स था, सब 3 के मल्टीपल्स में आ चुके हैं। नाउ y को विल मेक y इंटू 5, प्रिंट y का बन चुका है, ठीक है। देन अगर हमने मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स करना है, मतलब x इंटू वाई करना है, तो वी ऑफ कोर्स यू विल बी सेइंग क्या करो, x इंटू वाई कर दो, x इंटू वाई, है ना, ऐसे, और फिर मल्ट को प्रिंट कर लो, आ गया आंसर। बट ये आंसर गलत है, द आउटपुट इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, राइट। सो इसमें ये नहीं पॉसिबल है बिकॉज वो उसके कॉलम्स 2 हैं एंड रोज आर 5, कॉलम्स दोनों के सेम है, रोज डिफरेंट है, तो वन ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट। तो ये केस x और y में नहीं हो सकता, इसलिए विल मेक अ न्यू मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम्स ऑफ सेकेंड शुड बी सेम, ताकि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ठीक हो सके और उसका आउटपुट भी सही है। सो विल मेक अ मैट्रिक्स नेम्ड एज ए मैट्रिक्स 1 to let's say 12, 3 by 4, and B matrix where 13 to 24 it will be 4 by 3 का matrix, control enter। now print A and B, you can see अब क्या है 3 by 4 का matrix बन चुका, ठीक है। now हम रूल क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हम न्यू मैट करके रखेंगे ताकि हमारे पास रहे वो न्यू मैट 1, अप्लाई द ऑपरेटर एंड a परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज b, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। you can't directly put a asterisk mark between two matrices, you have to use the multiplication sign। also I have covered multiplication वाला पहले भी टॉपिक, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला आई एम सेइंग परसेंटेज टू परसेंटेज वाला पहले भी टॉपिक। लेट मी नो यू जो आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो मैंने ये कहाँ कवर किया था, कमेंट डाउन, मैंने आपको बताया है फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, आई एम श्योर मैंने आपको बताया है, उसका लॉजिक भी बताया था। कमेंट डाउन और मुझे बताओ कि ये मैंने कहाँ और यूज़ किया था मल्टीप्लाई और सॉरी परसेंटेज एंड परसेंटेज। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, प्रेस कंट्रोल एंटर। नाउ यू कैन प्रिंट न्यू मैट 1 एंड यू कैन सी अब जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है नाउ इट्स करेक्ट वन, राइट। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ओवर हो चुका है, डिविजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट देयर। नाउ ओनली 2 कॉन्सेप्ट्स आर लेफ्ट, ट्रांसपोज एंड इनवर्स, राइट। छोटे छोटे हैं, लेट्स कंप्लीट इट एंड नेक्स्ट में विल मूव टू द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज लिस्ट एंड डेटा फ्रेम्स, राइट। सो ट्रांसपोज में क्या होगा, जस्ट राइट टी ट्रांस लिख दो बना के टी एंड पुट ब्रैकेट, फॉर एग्जाम्पल ए का ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम बनाना, कॉलम्स को रो बनाना, आई थिंक इतना पता होगा आपको। प्रेस कंट्रोल एंटर, प्रिंट ट्रांस। नाउ यू कैन सी पहले जो ए मैट्रिक्स थी वो ऐसे है 1 2 3 4 5 6, अब क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन चुकी, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स। इनवर्स का एक्चुअली आई वोंट बी कवरिंग क्योंकि इसमें ना एरर आ रहा था इनवर्स का व्हेन विल बी डूइंग, एंड ऑल्सो हमारे टीचर ने जब हमें इनवर्स सिखाया था दैट टू शी फेस द डिफ़िकल्टीज एंड शी सेड दैट
if everyone is facing the error with the inverse function, then it won't be asked by the examiner, so you need not worry about the inverse one. So keep it till transpose only. So matrices में we covered today what all we did. First of all save this file. हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स का मतलब समझा, वी डिड द मीनिंग, एंड मैट्रिक्स का सिंटेक्स भी अंडरस्टूड, कैसे होता है डेटा एन रो एन कॉलम बाय रो ट्रू एंड फॉल्स, राइट। उसके बाद वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस को हम कॉम्बाइन कैसे करते हैं, उसके बाद रोज को रिमूव कैसे करते हैं। देन वी डिड द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन किया, एंड देन एट लास्ट वी डिड द ट्रांसपोज पार्ट, राइट। So today's video is over, and your matrices का concept is also over. I hope you like that video, like this video, and for the practice question join the telegram group. I'll be posting by late evening, I'll be posting the practice question so that you can also practice hand to hand. जैसे ही आपने concept cover किया है, you can practice that on your own as well. And make sure you subscribe the channel and like the video if you understood the concepts. Drop a comment where I used a percentage wala symbol, if you remember that. If you don't remember that, go back to that video and clear the concepts first and then continue with this video, right? Comment down below this part, and if you like that video, hit the subscribe button, because 15 days mein you will be flooded with the videos and you need that videos for your exams. Your exams are around the corner, and I know that you need that, and you should be preparing well for that, right? So all the best to everyone. Share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.